3 राउंड थे, मैंने तीनों राउंड दिया एंड फ्रॉम माय साइड इट वाज द बेस्ट। ठीक है, मतलब मैं ऐसी थी कि यार इसमें तो हो जाना चाहिए, बिल्कुल Yeah. ऐसे, ठीक है ना। फिर भी एक सप्ताह तक आई डिडंट गेट एनी कॉल फ्रॉम एचआर, सो यू शुड नेवर डू दिस, ओके। देन व्हाई Yeah. विल दे हायर यू? ठीक है, कोई एक बार में सीढ़ी नहीं चढ़ जाता है, आपको गिरने हाँ. पड़ता है फिर आप चढ़ते हो। मेरा थोड़ा रूटीन था कि या तो रात में जग के कर लो और हम्म. फिर सुबह उठकर कर लो। 40 मिनट्स हम्म. अगर आप किसी क्वेश्चन को दो तो यू विल गेट इट। मुझे नहीं आता है, आई एम हम्म. सॉरी बट आई डोंट नो। Welcome to AccioJobs YouTube channel. My name is Garima and I'm currently a mentor at AccioJobs. Also, I'm an upcoming SE at Google. Today we have Anshu with us and she is a software engineer at Adobe. So we'll discuss with her about the entire selection process at Adobe. So yeah, let's welcome her. Hi Anshu, how are you feeling? Yeah, hi Garima, I am all right. Thank you for asking and inviting me here. Congratulations for getting selected in Adobe. Yeah, sure. Thank you so much and congratulations you too for Google. Thank you. Okay, so I'll start from the very beginning. So, when did you first develop an interest in programming? Okay, so basically I am from electrical background. Hmm. So you can say like when my third year comes to an end, I feel like I should move towards government job. Okay, Okay. like I started to prepare for IES or even GATE, but after some times, like when you are doing something, you हाँ. need full motivation for it. मतलब ऐसा था कि मैं थोड़ा की, उसके बाद ऐसा लगा कि ठीक है एक और कोडिंग भी एक्सप्लोर करते हैं। Okay, Okay. and for electrical parts, I have like apart from electrical, I have done some deep learning. Hmm. That's why I got the intern in TCS. And after that, I tried to more explore in coding and left the Okay. electrical background. Like it was not a strict decision. It was like both. Okay, I should do this or do this kind of things. And when my placement comes, Hmm. like my on campus was in Nokia. Like Okay. Got it. तो पहले आपने TCS में internship करी थी and then उसके बाद you also got an opportunity in Nokia yeah, and finally Adobe was off campus. yeah, Great. Okay, so like you were from electronics background, तो yeah. ऐसे कैसे हुआ कि you shifted to software और even कर भी लिया and third year के end में तो बहुत ही कम time बचा था तो हाँ, तो एक्चुअली एडोबी मेरा लाइक एट द एंड मोमेंट डिसीजन था। ठीक है, हम्म. मतलब आई वाज ट्राइंग since whole fourth year that I could get some, you can say, like day one companies. हाँ. Okay, and like I have given the interview in many companies, like you could say Google, Amazon, even I have tried Facebook London, but I got rejection from everywhere, honestly. हम्म. Okay, but one day suddenly I got one post on LinkedIn from HR of Adobe. Okay, तो like मेरे पास कोई Adobe HR नोएडा का वैसे पोस्ट आया था फीड पे एंड हम्म. आई शो। फिर मैंने उन्हें मैसेज किया, although they didn't reply to my message, पर Okay. आई गेस उन्होंने ऑब्वियसली नोट डाउन किया है। ठीक है, तभी हम्म. मेरे को ऐसे कुछ 2-3 दिन के बाद ही टेस्ट लिंक आ गए थे एंड हम्म. आफ्टर दैट आई गॉट द इंटरव्यू। Okay, that's great. So like हुआ कैसे Adobe में? Okay, so first round was a test. हम्म. Okay, it was a very basic question of DSA. Like मैंने अभी तक शायद जितने टेस्ट दिए थे, like you can say for any reason, कि कभी आपका लक भी काम कर जाता है और whatever. There is something English grammar also. Okay. Okay, and after that two coding question, and it was all like according to me it was easy level, just for DSA. Okay, and after that I got the call for interview. Total 3 इंटरव्यू होने थे। एक दिन में मैं 3 इंटरव्यू भी कर सकते थे अगर मैं चाहूँ तो, उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया अच्छा. था। ओके, हम्म. तो जो फर्स्ट इंटरव्यू था, इंटरव्यूअर जस्ट डायरेक्टली आस्क्ड सम कंप्यूटर नेटवर्किंग क्वेश्चन। ओके, एंड ऑनेस्टली आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, हाँ. आई हैव गॉन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्किंग बट नॉट मच। ठीक है, हाँ. तो मैंने उनको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आंसर देने का कोशिश किया, देन वो डीप में जाने लगे। आई डिनाइड, मुझे नहीं आता है, आई एम सॉरी बट आई डोंट नो, बट आई वाज लकी। आफ्टर दैट इंटरव्यू
चेंज द टॉपिक टोटली टू DSA, ठीक है। Right, okay. मतलब या लाइक मेरे को पर्सनली कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड OS में अगर इजी लेवल क्वेश्चन हो देन आई कैन गिव यू द आंसर, बट मैं डीप में उतना नहीं पढ़ी हूँ क्योंकि वो मैं एज अ हाँ, कोर्स obviously, ले ली मतलब थी, ठीक है। हाँ ठीक है। तो फिर उसने DSA के क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन थे, एक ट्री बेस्ड थे, okay. ठीक है, एंड एक लिंक लिस्ट बेस्ड था। लाइक इट वाज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ओके। देयर आर मेनी साइट्स अवेलेबल हु सेज कि तुम 350 क्वेश्चन कर लो तो तुम्हारे एक हो जाएंगे, तो स्टैंडर्ड क्लियर हो जाएगा। मेमोरीज कैसे काम करता है, लाइक इन C++ मेमोरीज ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होती, आपको करना पड़ता है। जावा में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। फिर मेरा सेकेंड राउंड हुआ, इट वाज अ काइंड ऑफ फन यू कैन से। तो लाइक सेकेंड राउंड में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसने ये पूछा था कि आपको 3 नंबर देकर रखे A B C, ओके, एंड यू नीड टू फाइंड द मिनिमम वन विदाउट यूजिंग द कंपैरेटर। कंपैरेटर यू मीन लेस देन ग्रेटर देन, और you can't use the comparator, you just need to find the minimum without using comparator, like in proper coding way. I thought, then I replied like there is some also like thinking process you need, okay. You can communicate to interviewer if you are not getting, and inside the while loop make A minus minus B minus minus C minus minus. A B and C are the 3 numbers, ओके। जब तक कि तीनों में से कोई एक नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक उसमें से -1 घटाते रहना। जो नंबर पहले 0 हो गया यू फाइंड द मिनिमम वन, ओके, ठीक है। सो दैट वाज द माय आंसर। देन इंटरव्यूअर आस्क्ड कि व्हाट हैपेंड इफ माय नंबर वाज सो लार्ज, लाइक तो हमारा वाइल बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। देन आई गॉट द पॉइंट अबाउट द रिमाइंडर और मॉडुलो, ओके। Like if A is smaller and B is greater, and if you divide A by B, then you got 0. Okay. तो फिर अगर मुझे A और B का स्मॉलर फाइंड आउट करना है विदाउट कंपैरेटर यूज किए, मैं बस डिवाइड करके पता कर लूंगी। अगर 0 आ रहा है A by B है, और अगर 0 आ रहा है तो A स्मॉलर है, और नहीं आ रहा है तो B स्मॉलर है। दैट वुड बी द ओके। तो पहले A और B में कंपेयर कर लो, फिर जो मिनिमम आया उसका और C में कंपेयर कर लो, ओके। तो लाइक तो फर्स्ट क्वेश्चन गेट सॉर्टेड, ठीक है। इट वाज गुड एक्चुअली, मतलब मैंने बहुत सारे ये एक्सपीरियंस भी पढ़े थे एडोबी के, तो उसमें वो सेकेंड राउंड में भी DSA पूछ रहे थे, बट आई डोंट नो, लाइक कभी आपके के मूड पे भी डिपेंड करता है, तो वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाइक पूरा एक इंटरव्यू मेरा लॉजिकल बेस्ड था। सो एज यू मेंशन, जैसे जब कुछ CN से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो यू डायरेक्टली सेड कि नहीं आता? नहीं, मैंने पहले थोड़ा कोशिश किया मेरे नॉलेज में। ऑब्वियसली इफ यू आर सिटिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर रोल, यू शुड हैव बेसिक आइडिया ऑफ देयर सब्जेक्ट, या तो मतलब थोड़ा तो था मुझे नॉलेज, पर वो कुछ ज्यादा ही डीप में जाने लगे थे। देन आई सेड कि सॉरी आई डोंट नो दिस। लाइक आप कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते हो। पहले मेरा एक बार गोल्डमैन सैक्स इंटरव्यू था, there I completely denied in the first round. I don't have the knowledge of this subject, so you should never do this, okay? Then why will they hire you? Yeah, you don't have the knowledge. So even if you don't know, you should try answering, and then later on mention that you are not very comfortable with this topic. Yeah, like थोड़ा mix up करके आंसर दे कि I'm not comfortable in giving the answer, या फिर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, I'm not able to think about it, kind of. Okay, great. So like ऐसे क्या strategy रही थी from starting to prepare for software engineer roles? Okay, तो like as I said कि मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से थी, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, ठीक है। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में सब C++ या जावा कुछ पढ़ते हैं, उसमें भी मुझे D ग्रेड लगा था, okay. I was just so versed in coding side, ठीक है। पर आपका एक फ्रेंड जोन या फिर जो फ्रेंड का जो सर्कल है वो काफी मैटर करता है, ठीक है। तो वो भी इंस्पायर करती है आपको। तो मैं वो देख रही थी कि ठीक है, लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा कर रहे हैं, काइंड ऑफ थिंग। इलेक्ट्रिकल में तो बिल्कुल भी प्लेसमेंट नहीं होना है। इवन
लर्निंग कर रखी थी, तो डीप लर्निंग की भी जो कंपनीज आ रही थी वो पहले डीएसए पूछ रही थी। और एक मेरे सीनियर थे, वो मुझे हमेशा ऐसे गाइड करते रहते थे कि डीएसए तो कर ही लो, अगर जॉब चाहिए तो डीएसए कर लो। makes sense. तो फिर मैंने डीएसए गिग्स फॉर गिग से पढ़ना स्टार्ट की थी, ठीक है। आफ्टर दैट आई ट्राइड टू इंटर इन दैट जोन, 350 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जोन चल रहा था मेरा। ऑनेस्टली मेरा ऐसा कुछ प्रोफाइल नहीं है कि मैं लीड कोड पे 5 स्टार हूँ या हैकर अर्थ पे 5 स्टार हूँ, ऐसा कोई मेरा प्रोफाइल नहीं है। मैंने बेसिक गिग्स फॉर गिग्स किया, प्रैक्टिस अगर करनी है तो मैं लीड कोड पे कर ली हूँ, मुझे अभी भी याद भी नहीं है कि कौन सा स्टार है मेरा उसमें, ठीक है। Okay. वैसा कुछ जो नहीं था, इट्स ऑल अबाउट कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। कितने बार मैंने देखा है लोगों को कि उनका 5 स्टार रहता है पर वो बस कॉपी पेस्ट कर देते हैं कोड को, ठीक है ना। तो वो नहीं करना है। आप जब भी किसी कंपनीज में जाते हो तो यू रियली हैव टू वर्क। मतलब अभी मैं एडोबी में काम कर रही हूँ ना, तो मुझे इस काम से ज्यादा इजी इंटरव्यू प्रोसेस लगा था। तो फिर आपको काफी ऑनेस्ट होना पड़ता है खुद के साथ और कंपनीज के साथ भी, देन यू कैन सर्वाइव ओनली। ओके, तो जैसे मतलब अभी ये जो 350 क्वेश्चंस वाला था, ये थर्ड ईयर के बाद में आपने स्टार्ट किया, और ऐसे लाइक यूजुअली क्या रूटीन रहता था? हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू सॉल्व ईच डे? कुछ ऐसे नंबर डिफाइन कर रखा था या फिर कुछ आवर्स ऐसे स्पेंड किए? या सी लाइक मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि आप ऐसे कुछ आवर्स डिसाइड करते हो तो वो काम नहीं हो पाता है। मतलब मेरे से पर्सनली नहीं हो पाता, ठीक है ना। मेरा पर्सनली टारगेट ये जाता है कि इतने क्वेश्चन मुझे आज करने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप आवर्स डिसाइड करते हो और अगर उस आवर्स में आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो, देन यू स्टार्टेड टू चीट फ्रॉम अदर साइड एंड ऑल, एंड इट्स ऑल राइट इफ यू आर नॉट गेटिंग बाय योरसेल्फ, you can check online, but you must understand the code flow, that's mandatory, ठीक है। और अगर ट्रीज के अगर आप 5 क्वेश्चन कर लो ना, तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन वो भले हार्ड लेवल के हो पर आपको लगेगा नहीं कि वो हार्ड लेवल का, अगर आप उसके इजी लेवल कर लो तो, क्योंकि वो वही पार्ट कहीं ना कहीं यूज होता है, वो मॉडिफाइड हो जाता है। तो बस ऐसे ही, मतलब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने सेट किया था, लाइक ऐसे मेरे दोस्तों का तो कहना था कि टोटल 6 क्वेश्चन करो तब जाकर के हो पाएगा, पर ऑनेस्टली मेरे 4 ही हो पाता था। आई वाज इन फाइनल ईयर, वो भी कैसे मिस कर सकती थी। मतलब मैं ऐसे 4 क्वेश्चन फिर भी मैं कोशिश करती थी। लाइक मेरा थोड़ा रूटीन था कि या तो रात में जग के कर लो और फिर सुबह उठकर कर लो। 40 मिनट्स अगर आप किसी क्वेश्चन को दो तो यू विल गेट इट। लाइक डू यू थिंक रेज्यूमे में बहुत ज्यादा काम आया, बिकॉज आपने डीप लर्निंग पे भी काम किया था पहले? ऐसी रिज्यूमे काम करता है ऑब्वियसली। आपका जो फ्रंट इमेज होता है, ना ही कंपनी आपको देख रखी है ना ही आप कंपनी को देख रखे हो, पर कंपनी आपको सेलेक्ट रिज्यूमे बेस पे करती है, ठीक है ना। उसमें प्रोजेक्ट भी मैटर्स करते हैं कि आप किस टाइप के प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है। मतलब जब मैं इंटर्नशिप का सर्च कर रही थी, देन आई कैन पुट द बेसिक प्रोजेक्ट, बट वंस आई एम सर्चिंग फॉर जॉब आई शुड एडवांस माई प्रोजेक्ट। आप बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट नहीं डाल सकते हो कि ठीक है वो स्नैक्स एंड लैडर गेम डाल दिया एंड ऑल, ठीक है ना। अगर आप कुछ डे 1 कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन यू मस्ट फोकस कि आप किस टाइप का प्रोजेक्ट डाल रहे हो उसमें, ठीक है ना, वो मैटर करती है। आफ्टर ऑल, ठीक है, मतलब मैं से थोड़ा पर्सनली बोलूँ तो उस प्रोजेक्ट के बारे में ना कंपनी जानती है कि आप क्या कर रखे हो, तो आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट वे में भी, ठीक है। लेकिन हाँ, आप जिस स्किल्स को मेंशन कर रहे हो that you must know, because आपसे जावा और C++ ये सब आपने मेंशन कर रखा था ऑन रेज्यूमे that you know Java and C++ both. Okay. And also like ऐसे बहुत सारे rejections आते हैं normally, so what would you suggest, like what should anyone do in those cases? Yes, like rejection के लिए तो मतलब अब मेरे ऐसे फ्रेंड से पूछ लो कि मैंने ऐसे बहुत ही रिजेक्शन फेस किए हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत ही ज्यादा। अमेज़न में मैं शायद 2-3 बार इंटरव्यू दे चुकी होंगी, फॉरेन में भी इंटरनल में भी। एक बार तो मैंने ऐसे अमेज़न बर्लिन की इंटरव्यू दी, 3 राउंड थे, मैंने तीनों राउंड दिया एंड फ्रॉम माय साइड इट वाज द बेस्ट, ठीक है। मतलब मैं ऐसी थी कि यार इसमें तो हो जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। फिर भी 1 सप्ताह तक आई डिडंट गेट एनी कॉल फ्रॉम एचआर। व्हेन आई पिंग्ड हर, शी सेड दैट डेंसू सॉरी, अभी हमने किसी और को ले लिया तो हम तुम्हें नेक्स्ट टाइम लेंगे, ठीक है ना। तो लाइक ये हमेशा होना है, ठीक है। कोई एक बार में सीढ़ी नहीं चढ़ जाता है, आपको गिरने पड़ता है, फिर आप चढ़ते हो। किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, कोई 1 नहीं तो 2 बार में चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, मैंने ऐसे काफी
फेल्योर आए, यू विल गेट डिप्रेस, ठीक है, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि ठीक है, जो होगा यू कांट चेंज इट, ठीक है, तो फिर अब बस इस पे फोकस करना है कि वो तो नहीं हुआ, अब आगे मैं किस में अप्लाई कर सकती हूँ, या फिर अप्लाई कर रखा है तो उसके लिए कैसे पढूं, ठीक है, दैट यू शुड हैव. इफ यू आर demotivating, try to contact your friends or your mentors who guides you. Correct. Yes. So like positive attitude रखना, ये सब बहुत ही ज़्यादा important हो जाता है इस time पे. Okay. Thank you so much, Anshu, for your time. Like it was great talking to you, and yeah. So I hope you all enjoyed the video, and please like, subscribe, and comment, and let us know which part of interview inspired you the most. So yeah, thank you so much.